Good morning, India. Hi, this is Anchal Puri on Spotify with Taza Talks. And today we are welcoming our esteemed guest. एक कलाकार के साथ एक अपनी आर्टिस्टिक जर्नी, विजनरी आर्टिस्टिक जर्नी के साथ आज हम वेलकम करते हैं कृति पोदार जी का। कृति मैम, वेलकम ऑन ताज़ा टॉक स्टूडियो। Hello, good morning. गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? Good, good. How are you? आई एम गुड, परफेक्टली फाइन। आपको Thank देख के और अच्छी you. हो गई। Thank you for having me. It's like my pleasure. थैंक यू सो मच मैम। Thank- कृति मैम, हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी इंट्रोडक्शन से। आप अपनी जुबानी खुद बताइए हमारे दर्शकों को। Okay, so my name is Kriti Podar and artist मैं as an hobby से start किया था when I was very young. जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, I don't even remember when I scribbled first. तब से आर्ट में मुझे करना बहुत पसंद है. That's like kind of a यू कैन से कि एक वो मुझे बहुत सुकून देता है, इट्स लाइक दैट। तो वो मैं बहुत सालों तक से स्टार्ट करा। स्कूल में मेरे आर्ट बहुत अच्छा सिखाते थे, तो आई गेट मोर पैशनेट अबाउट आर्ट फ्रॉम देयर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट too much into CS and CA, I still was involved in art somewhere or the other. फिर उसके बाद पेंटिंग्स बनाते थे, बट वो सिर्फ ये होता था कभी घर के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए। तो आई वाज नॉट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, बट जितना आता था उतना मैं करती जा रही थी। Then I came to teaching line. I was heading a school. I was principal to a school for 5, 6 years. And then one odd day, I was like, okay, abhi ho gaya. Now I have to really pursue my thing, hobby, which I say, or which is like giving me so much of pleasure. Because when I was being into that kind of a role in a school, I didn't had much time to do the artwork. So I was missing it badly. So one fine day, 1.5 year back, I just quitted and I just started with my art journey. So I was exploring myself. So now, right now, my major aim is to promote the folk arts. Because जब मैंने ये start किया, then I started to feel like people really doesn't know how good or what kind of art India has. Because जब भी हम किसी से बात करते हैं, तो it is like contemporary. I don't say that the kind of arts are not good. It is just we are just forgetting our roots. जो हमारे folk art है, वो उसको हमें भूलना नहीं चाहिए. बिल्कुल। So now I was always being passionate about folk art, but अब ये है कि अब मैं उसको सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, बना भी रही हूँ और just I'm giving that kind of atmosphere to people where they can, understand more folk art. And कभी कभी I really don't want to do it, but हाँ कभी कभी है कि to just make it more friendly for the people who really love contemporary. I mix my folk art with the contemporaries also, so they both get involved in it. ओके, So वाओ। this is how I started my brand called Kalakatha, because इसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरा ये मानना है कि जितनी भी स्टोरीज हैं, कोई भी स्टोरी, कोई भी ड्रीम, कोई भी थॉट प्रोसेस आपका कुछ भी है, उसको आप पेंटिंग में बना सकते हो। और जो भी पेंटिंग आप बनाते हो, वो कुछ ना कुछ स्टोरी बोलती है। चाहे अगर आप एक एक छोटा सा अगर आप लोटस भी बना रहे हो, तो कुछ सोच के आपने लोटस बनाया है उसको। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कला कथा, कला जो बोलती है। राइट, वाओ। हाँ। तो इफ आई टॉक अबाउट योर ब्रांड नेम, तो कला कथा आपने आपने रखा ये नाम, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था? ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया? So basically, me, my kids, and my husband, हम चारों, I have two daughters. So हम चारों, like, they are staying not with me. Like they are, one is elder one is in US and younger one is in Mumbai. So we were just on the video call discussing कि नाम क्या रखना है. So there were like plenty of options, and being my name Kriti is means creation. So they wanted too much of Kriti in it, but मैंने कहा नहीं यार बेटा, Kriti with like too much, very. It's हाँ, not gelling up with कॉमन है। what I really want. हाँ. So then suddenly she just asked me कि आपको what is your main aim? तो मैंने कहा I really feel the story thing kind with my लाइक painting. एज यू सेड कि हर
हर so पेंटिंग, from हर that कुछ particular कुछ concept वो this स्टोरी बोलती name है। came from कला कथा। और फिर हमने कला को थोड़ा सा और ट्विस्ट दे दिया, के की जगह हमने क्यू लगा दिया उसमें। राइट, वो तो तो that is हाँ, बहुत सुंदर भी लगता है। एंड प्लस हाँ। आपने जो उसको एक कलर दिया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। So basically, orange color is something I'm too much into red. मुझे रेड कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है, स्पेशली अगर आप मेरी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स देखोगे तो उसमें मैक्सिमम आपको रेड तो दिखेगा ही दिखेगा। इट इज वन ऑफ माय काइंड, अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ कस्टमाइज्ड पेंटिंग विद द पीपल डजंट वांट अ रेड कलर। अदरवाइज अगर मैं अपने मन से खुद बना रही हूँ तो उसमें रेड कलर है ही। सो we just ओके, wanted to take a subtle color insteड of red, so we just took an orange because it is again a same मैं देख पा रही हूँ tone. आपके बैकग्राउंड पे काफी कुछ हाँ। रेड है। या हाँ सो जी। कृति मैम, व्हाट वर सम pivotal moments or influences in your life that shaped your artistic vision? So, to start with, I'll start the first foremost is my mother. Like, she herself is a very good artist. And I always used to see her, creating those kind of eyes and faces because she was a fine art student. So, and sometimes, she used to scribble on the paper and the eyes and the face she used to make. Oh, And I was, too much passionate about it. Arey, mummy kitni sundar banati hai. It was like that. And then the second was when I came to the school. I studied my schooling from Udaipur. So Udaipur is again, very cultural place. And so my teacher out there was, she was too much into miniatures and everything. So when you used to create miniatures, it is too much of concentration required. And it's like a kind of a blessing when you make a miniature painting. So I was too much involved in it, and then she taught me so nicely. Oh, it was so wonderful teaching. I still remember her one like कभी बच्चे होते हैं हम तो हमें ऐसे क्यूरियोसिटी होती है मैम हम कब सीखेंगे हमें कब सब आ जाएगा टाइप्स वाला क्वेश्चन था मेरा उनसे तो she just told me see art is never you cannot learn the art you can never fulfill learn because जब तक आप करते रहोगे वो आप सीखते रहोगे it is like correct. that it is a continuation process but हाँ अगर if you say कि okay I have learned something तब ये है कि जब आप एक 12 नंबर का ब्रश उठाओगे और उससे एक पतली सी लाइन बना दोगे तब आप समझ लेना हाँ यू हैव लर्न समथिंग Oh, so I still remember that and I still try it and I still am not able to achieve it so this is something and then I had one of my gurus which I was not able to learn from him a lot just I was like 1 month I could go to him and then he went like I think so भगवान जी को ज्यादा जरूरत थी उनकी so but yeah that was also very remarkable because at that particular moment I remember learning doodling from him which was 27 years ago uh, तो so yeah these are मैं very like अगर कृति hmm, मैम आपके आर्टिस्टिक स्टाइल की बात करूं, तो hmm. आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगी? एंड कोई ऐसी थीम्स होती हैं आपकी, या जैसा आपको लगता है, या आपका मतलब जो भी आपके माइंड सेट में जो थॉट्स आते हैं उसके हिसाब से आप बनाती हैं? देखिए मैं आपको बहुत frankly बोलूं so there is no particular style right now which I have created ओके। what I you can always see is that I always like to do a very minute work मेरे को बारीकी का काम करना बहुत पसंद है अच्छा। इंस्टेड ऑफ डूइंग वेरी बिग थिंग्स तो मेरे को जहाँ पे भी होता है अगर मैं छोटी चीज भी होती है तो मैं आई ट्राई टू फिल इट विद लाइंस और सम अदर पैटर्न्स और समथिंग तो मुझे एक तो वो बहुत पसंद है करना मतलब जहाँ पे जरूरत नहीं है तो भी आई थिंक अच्छा चलो बना सकते हैं हम सो इट इज लाइक दिस so एक ये है एक obviously I've told you red color is something if normally जो canvas के size होते हैं we normally leave them because that goes into framing but मेरा ये रहता है कि okay I'll try to put them a red background or a black I don't leave it like a blank canvas I don't like it to do that secondly मतलब मेरा स्टाइल में अभी आपको ही बोलूंगी बिकॉज आई एम थिंकिंग लाइक आई एम ट्राइंग टू हैविंग माई आई हैव टू माई ओन स्टाइल एंड बनाने के लिए ये है कि सी आई मीन टू फोक आर्ट एंड फोक आर्ट का मतलब है जो भी आपने देखा आपने बनाया
तो मेरा भी यही रहता है कि जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ वो मैं बहुत सारी चीजें बनाने की कोशिश करती हूँ। इट्स जस्ट आई डोंट ट्राई। जैसा मैंने पेड़ भी देखे, लाइक वी वेंट टू एन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ थे। सबकी पिक्चर्स क्लिक करी, सबको बनाया, बट उसमें थोड़ा सा अपना ओन टच दे दिया फॉर दैट फाइन लाइंस एंड एवरीथिंग। So yeah, I like to create this, and then I also love to create mythological characters because अब मैं सीख रही हूँ, अब मैं पढ़ रही हूँ उनके बारे में और सीख रही हूँ and बहुत कुछ जान रही हूँ। So you'll find to मतलब you will find a balance of mythological characters and obviously the backgrounds, natures and everything. ओके। तो आप Hmm. कहीं इसको एग्जिबिट भी करती हैं, या आपको ऑर्डर्स आते हैं, या आप ऑनलाइन कैसे हैं, जिससे हमारे दर्शक आपको कनेक्ट कर सकें, थोड़ा सा बताइए। See, एग्जीबिशन तो अभी तक मैंने एक ही लगाया है, which was with Heart of Art. So I'm trying to put an exhibition of my as in a solo exhibition. तो उसके लिए अभी मुझे थोड़ी काफी ज्यादा प्रिपरेशन करनी है. So it will take around one and a half year more for a solo exhibition. But right now मेरे पास it is more of word of mouth, which people are coming, seeing, or through the network meet, where they came to know about me. They came and saw my plays. फिर उन्होंने अपने customized orders दिए because my major aim to is to जब आप वॉल पे अपनी कुछ लगाते हो तो वो आपकी पसंद का होना चाहिए, मेरी पसंद का नहीं होना चाहिए। राइट। So we understand what they want, वहाँ पे इनको क्या चाहिए, कैसा कलर चाहिए, क्या चाहिए। फिर then we discuss. It is not that they उन्होंने बोला मैंने पिक्चर शेयर कर दी, नहीं, we I make a sample out of it, put different colors. कई बार ऐसा होता है उनको लगता है कि हाँ ये कलर अच्छा लगेगा, but being an artist we know this color doesn't suit. So we give them options, create options for them on the paper first, and then I share with them. फिर उनको जो पसंद आता है then we create out of it, and then I keep on sharing videos and clips in between, so they feel that they are part of their own journey in the painting. तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जब तक उनके पास पेंटिंग जाती है। तो हाँ, मैम, हम इसको अभी कैसे। मेरा ऑनलाइन एक है, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे है अकाउंट। So Instagram I'm really promoting because I'm feeling like these days we have to promote. It can't just work out with the word of mouth. So you can always find me as QALA Kala Katha there. तो Hmm. जैसा कि आप देख पा रही हैं, आजकल सैड मोमेंट्स बहुत जल्दी सैड हो जाते हैं, Hmm. डिप्रेशन आ जाता है, Right. मार्केट में Right, एंजाइटी right, का right. लेवल हाँ. बहुत बढ़ा हुआ है। Hmm. तो क्या Hmm. आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या आप इसको बता सकती हैं कि हम आपका जो आर्ट है, ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन वालों को, एंजाइटी वालों को थोड़ा सा क्योर कर सकता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं घर में एक्वेरियम लेके आइए, ये पेंटिंग्स लेके आइए, तो क्या आपका आर्टिस्टिक वे भी कहीं इसमें हेल्प करता है? देखिए, लगाने से ज्यादा मैं सोचू, मेरा बिलीव ये रहता है कि जब आप उसको करते हैं तो दैट रियली क्योर्स। ओके। मतलब आई एम टेलिंग यू, इट रियली क्योर्स, स्पेशली लाइक इट्स अ मंडाला आर्ट। मंडाला आर्ट इज मेंट फॉर दिस, इट इज अ मंडाला आर्ट जिसको हम बोलते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ थेरेपी ओनली। ओके। सो सो मंडाला इज समथिंग वेयर इफ यू डू इट द प्रोसेस वाइज प्रॉपरली, आपका डिप्रेशन इज रियली गॉन। आप जैसे अब बच्चों को, जैसे नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कंसंट्रेशन लेवल नहीं है, एक जगह बैठता नहीं है, हम्म। राइट? ये बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों के साथ। सो राइट नाउ आई हैव जस्ट ग्रुप ऑफ 6 kids with me of 4 to 6 years age group who sits with me for 1 hour, एक जगह बैठ के। सो इट इज नॉट, इट इज जस्ट लाइक कि आप उनको सिखाते कैसे हो या कैसे कराते हो, बिकॉज वंस यू आर इन्वॉल्व इन द आर्ट थिंग, वो इट इज नॉट लाइक कि उनका आर्टिस्टिक हैंड होना जरूरी है कुछ है, इट इज मोर एज एन थेरेपी फॉर देम विच गिव देम कंसंट्रेशन बैलेंस। मेरा भी है, अगर मुझे किसी दिन है कि ओ ओ आई एम फीलिंग वेरी लो टुडे, तो मैं ऐसा नहीं है कि अपनी पेंटिंग करने बैठूंगी, देन आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच आई वांट टू, स्पेशली ओके। रिपीटेड पैटर्न्स। अगर मतलब एक सॉन्ग सिंपल सब सुन रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी लगता है कि ओके मुझे नहीं है, एक सिंपल न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर आप ले लीजिए, सिंपल लाइन स्क्रिबल्स, छोटे छोटे सर्कल्स, रिपीटेड पैटर्न्स बनाते जाइए। विद इन 10 minutes यू विल फील योर सेल्फ सो लाइट, वो क्योंकि उसके साथ निकल जाता है वो सारा। रिलैक्सेशन आ जाता हाँ, तो है। जस्ट राइट। ट्राई इट वंस, जिसको भी करना है। So because I had a 1 or 2 live of my this on Instagram, and there I did this, and really they जिन्होंने भी अटेंड किया उनको बहुत अच्छा लगा था ये चीज, they felt कि हाँ नहीं, this is really very good. So एक तो एक जो ये वहम है हमारे में कि जब तक हमारा हाथ अच्छा नहीं है हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट
You can use it as your own therapy or as on your wonderful moments creating. And in fact, for this, I've started a new concept with me is like, आजकल मैंने notice किया है कि हमें खुद बनाई हुई painting लगानी है. So I am just giving them an opportunity where they can come, understand, I can understand what they want to put, and then I can help them to create the whole thing with me. तो जब आपने ये स्टार्ट किया, तो इसको पहली बात तो ये बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको इसको स्टार्ट किए? मैंने इसको स्टार्ट किया था लास्ट ईयर February. ओके। So that is 22 February. तो मैम व्हाट So हैव sorry, 23 February. ओके, तो आपको क्या Mhm. एज एन आर्टिस्ट आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? Mm, मैं इनको challenges नहीं बोलूंगी. To be honest, I will give it a new term, which is learning, because I was always into a job and this was my first business, second business in fact, and learnings इसलिए है कि okay, I randomly started it. कि okay, मेरे को आता है and I just started it. I didn't knew how to start it. तो मुझे जैसे जो learnings मिलती रही कि okay, so like I selected few platforms which were not helpful for me as a business taker. But हाँ, वो बहुत helpful platforms थे, but not as in for an artist. So this is something, and then the main challenge factor, what I think, is to make people understand how the place can be enhanced with a folk art, because उनके मन में ये है कि folk art लगाना है, मतलब मेरे डेकोर के साथ folk art नहीं जाएगा. You know, एक वो बड़ा चैलेंजिंग होता है अभी तक हमें समझाने के लिए. So that is बिगेस्ट चैलेंज आई कैन से कि किसी को समझाना कि ओके नहीं, मतलब एक सिंपल आप एक नेचर का जो फोक आर्ट है, सिंपल एक ट्री है या फ्लावर्स हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स भी अगर आप उसको लगाओगे, बिकॉज उनके माइंड में ये, क्योंकि क्या होता है कि दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस एंड से दे सी, they don't understand that what they are selling there is different than what we are going to create for them, because that is again customized thing which can be created according to their taste. बट उसमें वो जो फोक आर्ट का टच होता है, द फोक आर्ट इज रियली मीनिंगफुल. ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ भी लगा दिया. इफ यू पुटिंग अ लोटस ऑल्सो, तो लोटस अगेन सिग्निफाइज, इट गिव्स यू कूलनेस, इट इज लाइक शांत, सिंबल है उसका. तो हम कुछ भी लगाते हैं उसके अंदर, दे आर अगेन जिनको वास्तु का या आजकल बहुत ज्यादा लोगों को रहता है कि हम अपनी अपनी ऑस्पिशियस चीजें लगाएं, तो ये सारी चीज़ों से बहुत हेल्प भी करती हैं इनफैक्ट. लाइक अभी रिसेंटली मैंने किसी के लिए ट्री ऑफ लाइफ बनाया था, तो उनका लाइक शी इज वेरी, दे वर वेरी ऑस्पिशियस पर्सन, तो मैंने उनके ट्री में 108 फ्लावर्स डाल दिए. So 108 again is a auspicious number. So it gives that kind of energy when you place it. So we have that thing कि नहीं, अगर आपको ऐसा कुछ करना है, so we will surely make it कि आपके लिए वो ऑरा क्रिएट करे. राइट। बहुत मतलब हम लोग बस सुन लेते हैं कि ऐसा होता है, बट बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे। नहीं, मेहनत बहुत लगती है. मीन्स इनफैक्ट ये होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि विद इन 3 2 आफ्टर 2 3 आवर्स ऑफ वर्किंग, लाइक द आईज आर स्वेलन अप, दे आर लाइक ओह। लिटरली आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं. देन वी हैव टू गिव द रेस्ट, थोड़ा सा गुलाब जल लगाया, कुछ लगाया, देन वी स्टार्ट रीवर्किंग. सो या इट्स रियली वेरी हार्ड. ओके, तो कृति जी अगर मैं देखूं कि हम 2025 में जा रहे हैं, तो आगे आपके ब्रांड कला कथा को आप कैसे विजनरी फ्यूचर आपका क्या है कि इसको हम कितनी दूर तक लेके जाने वाले हैं? कैसे क्या है आपने, आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं इसको लेके कि? मेरा एक गोल है जो मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं, आई रियली वांट टू वर्क फॉर इट, इज लाइक आई एम गिविंग एन ऑप्शन फॉर माय नियर बाय, मतलब नियर बाय भी नहीं बोल सकती, बट फॉर द पीपल, फॉर द लेडीज एंड फॉर द गर्ल्स हु आर नॉट एबल टू स्पेंड मनी फॉर लर्निंग, और जो मटेरियल लेने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन उनको शौक बहुत होता है बनाने के लिए. So I'm taking two women like this who can come with to me. I'll make them learn. I'll give them the stuff. They can be here for 6 months with me for 2 3 hours in a day, and then they can learn for it. And I'll also teach them कि उसको वो कैसे आगे business में भी convert कर सकते हैं. So this is my future goal कि मैं at least साल में 6 या 7 जनों को मैं I can make them learn something like this.
दैट्स आई थिंक बहुत हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एंड थैंक यू। सच में शायद आपकी वजह से कितने कुछ घर ऐसे हैं जो उनका अच्छा हो जाएगा। But राइट। I'm just struggling to find or to promote like this. So I'll just request anybody who's listening if they can, if they know someone and who are very good with art or they are really, eager to learn. क्योंकि मैंने बहुत सारी girls देखी हैं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है करना, but their parents cannot, afford or the husbands cannot afford. So they can just come, 3-4 hours every day. Within 6 months, they'll be, this thing. मैं उनको सब material, everything is there. Just have to learn and then they go. हम एंड डेफिनेटली इनफैक्ट इफ ताज़ा दे विल टॉक्स। मेक इट एंड मेरा ये भी है अगर वो कुछ काम करते हैं मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में एंड इफ इट सेल्स ऑफ आई विल गिव देम अ लिटिल प्रॉफिट पोर्शन आल्सो फ्रॉम तो इट। डेफिनेटली हम पूरी कोशिश करेंगे कि ताज़ा टॉक्स के माध्यम से ये हर घर तक ये चीज़ पहुँचे, तो थैंक पीपल यू कैन अप्रोच मच। यू डायरेक्टली। राइट। एंड थैंक यू तो वेरी मच। प्रीति जी, मैं जैसे आपने बात की कि आप कुछ ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहते हो, तो मैं ये एडवाइस चाहती हूँ आपसे कि जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? वो आपके साथ कैसे कहाँ कैसे कनेक्ट हो जाएं, या आपके कुछ कोर्सेज हैं या इसकी कोई ड्यूरेशन होती है? ये थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरे को अभी आई एम थिंकिंग टू ट्राई माय ओन वर्कशॉप स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बट नॉट रशिंग अप थोड़ा सा टाइम देके सो दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड जब मैं किसी को सिखाऊं। अभी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन जो सीख रहे हैं बट स्टिल आई वांट टू कम इनटू मार्केट व्हेन ओके आई एम 100 and 200% श्योर अबाउट इट and rest yeah offline a one to one I'm teaching people if they are coming to my place. So I'm situated in Gurgaon, so anybody you can go to my Insta page. There are the phone numbers and everything is given there, contact numbers. Um, there is no time limit to be honest because चलिए मैं आपको एक दिखाती हूँ जो मैंने अभी सुबह ही बनाया है. So it took me 1.5 hour. I think I can show you that. This is a small peacock. हाँ, So this complete peacock took me 1.5 hours to make. So it depends upon how much work or how much effort you're putting in a painting. अगर यही थोड़ा सा मैं मोटा मोटा काम करती थी तो मुझे कम लगता टाइम एंड ऑब्वियसली मतलब आर्ट का ऐसा टाइम के साथ कुछ भी नहीं होता. कई बार क्या होता है हम इतने फ्लो में हो जाते हैं कि हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है. कई बार ये होता है कि हाँ वी जस्ट टेकिंग इट स्लो so that particular thing takes you more time to complete. So I cannot say anything but yeah हाँ एक A4 साइज की अगर मैं पेंटिंग लेती हूँ मधुबनी की which I'm doing with a very minute detail so it takes me 1.5 day so it's around 12 hours. जैसा कि आपने बताया कि आपको बारीक काम करना ज़्यादा पसंद। हाँ राइट। हाँ. तो चलते चलते कृति जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, आप हमारे इंडिया के वुमेन्स को कुछ मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगी, जो जिनके अंदर टैलेंट है, हिडन टैलेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं किसी वजह से लैक कर रहे हैं, तो कैसे उनको आगे आना चाहिए? आपका मैसेज उनके लिए क्या है? मेरे को अगर मैं मैसेज दूंगी तो मैं वुमेन मैन दोनों को दूंगी. बहुत अच्छी बात है। Because I think so art is something where वो सबके पास है. That color is with everyone. It can be with the paints or it can be with the dance or any kind of color. तो मेरे लिए कला is a very wide word. तो जब मैं कला की बात करती हूँ तो वो इतना वाइड है and everybody has something or the other. Especially what I am feeling is men are so fond of art. They are so good at art, but they somehow push themselves back not to do this because somehow it is more of a woman oriented place for them. मैंने काफी जनों को देखा है ऐसे what I have noticed. Oh, okay. मतलब they are very shy telling oh I know drawing or I draw very हाँ। nicely. तो मतलब स्पेशली एट आर एज ग्रुप का वाला जो एक है मतलब जो जनरेशन है उसमें स्पेशली मैंने देखा बट फॉर मी आई थिंक सो इट्स वुमेन और मेन. अगर आपको कोई भी चीज का शौक है गिव इट अ ट्राई. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आप नहीं कर पाओगे बट कई बार क्या होता है वो आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है एंड these are kind of arts is something where you don't have to go around much. Agar if especially a woman who doesn't want to go much around or
who is not able to, जिनके बच्चे छोटे हैं या कुछ हैं, so they can always have that 1 or 2 hours free hours for themselves. So that is their me time where they're learning or they are doing something productive. And in fact, once you are done with the learning, you can always sell them also. Because these days, I think so the digital platforms for selling art or any other thing is so easy. So you can obviously you can just sitting idly, instead you can make money, or at least you are more confident once you, oh मैंने ये डाला था, सेल हुआ नहीं हो उससे मतलब नहीं है, बट इट इज लाइक, ओ मैंने डाला, so that confidence inside you raises. So I think so that helps, really helps. And obviously, once there is a me time for 1 hour, you are glowing a lot. तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना डायरेक्ट सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दीजिए यहाँ पर। वैसे हमारे एपिसोड में नीचे लिंक शेयर होंगे, बट फिर भी आप Okay. बता दीजिए सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली, दे कैन कनेक्ट यू डायरेक्टली। Hmm. So my social media account name is Kala Katha. So you can always write Kalakatha. So when you type Kala Katha, you will see an orange color, very prominent orange color logo on our Instagram page. And there you can find me. You can see all my work there. And we have few reels also which can help you to create, अगर आपको देख के भी बनाना है, so we have few tutorials also there. And obviously, yeah, we are working more on tutorials, so we might come up with YouTube soon, so you can easily go on YouTube and learn on my channel. And I can give you my contact number also. So if you want to contact me, the number is, I'm sorry, I'm not very bad with the numbers. So my number is 81303 888100. परफेक्ट। So you can WhatsApp me or you can call me. And if it's not that okay, किसी को अगर help भी चाहिए with any kind of like Madhubani art or something, so I'm freely available. It is not that I'm going to charge you anything. I am happy to help any day. वाओ, दैट्स अ वंडरफुल जेस्चर मैम। थैंक यू सो मच। Thank you तो थैंक यू so सो much. मच कृति मैम, आप हमारे स्टूडियो में Thank you आए। very much. थैंक यू वेरी मच। Uncle, thank you very much. It was pleasure talking to you. सेम हियर मैम, सेम हियर। Thank you. थैंक यू। तो व्यूअर्स, आपने देखा हमारे बीच में आज कला की कथा को बनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ब्रांड ओनर फाउंडर खुद हमारे साथ में थी। तो प्लीज़ इनका एपिसोड शेयर करते ही, लिंक आते ही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर इनके साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you.